Warm morning to one and all present here. This is Abhilasha Nahata from Behal Public School. And students, today we all are going to continue our chapter number 5th of your history textbook. The name of the chapter is When People Rebel, 1857 and After. So this is the last portion of this chapter, like this is a case study, okay, before the revolt of 1857. Just like the revolt of 1857, there was an incident, or there was a rebel in Odisha. So we will talk about it in this particular purple paragraph, okay. So the Khurda uprising, a case study. Khurda is a small kingdom, or a small kingdom of southeastern part of Odisha. Much before the event of 1857, there had taken place another event of a similar nature at a place called Khurda in the year 1817. Here, it would be instructive for us to study that event and reflect on how resentment against the colonial policies of the British had been building up since the beginning of the 19th century in different parts of the world. So, much before the incident of 1857, the revolt of 1857, a similar type of event happened in Khurda in the year 1817. And this particular case study is reflecting how how people were against the colonial policies, against the colonial policies of the British, and how they protest against it, and they protest against it since the beginning of the 19th century. Khurda, a small kingdom built up in the late 16th century in the southeastern part of Odisha, was a populous and well cultivated territory consisting of 105 Gurs. Gur is a name of, Gur is a tribe community, a particular tribe community. 105 Gurs, 60 large and 1109 small villages at the beginning of the 19th century. देखिए बहुत ही स्मॉल किंगडम था, एंड 16th सेंचुरी में लाइक ये साउथ ईस्टर्न पार्ट में ये बिल्ट हुआ था. It was a populous, and the land was like very fertile there. 105 tribal communities lived there. 60 large and 1199 small villages were there at the beginning of the 19th century. Okay. So its king, who was the king, Raja Biraki Shordev, had to earlier give up the possession of 4 Parganas. Now, वहां के जो राजा थे, राजा बिर किशोर देव थे, and he had to give up the possession. He had to give up the ownership of 4 Paraganas. Paraganas, what is Paraganas? Group of villages. Paraganas, group of villages को Paraganas बोला जाता है. In their ancient language, in their regional language, they call it Paraganas. Group of villages को बोला जाता है. So earlier राजा बीरा किशोर देव को क्या करना पड़ा था? अपने परागनास को गिव अप करना पड़ा था. जो ओनरशिप थी उनकी, उनको गिव अप करना पड़ा था. द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल, जो मैनेजमेंट था सुपर जगन्नाथ टेम्पल का, उसे गिव अप करना पड़ा था. एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 14 गरजात्स, जो प्रिंसली स्टेट्स को वो एडमिनिस्टर कर रहे थे. 14 प्रिंसली स्टेट्स को वो क्या कर रहे थे? एडमिनिस्टर कर रहे थे. प्रिंसली स्टेट्स के लिए जो टर्म यूज किया गया है, वो टर्म यूज किया है गरजात्स. ओके. सो टू द मराठास, किसको गिव अप कर दिया था? किसके अगेंस्ट में, मतलब किससे वो ये बैटल हार गए थे? और इतनी सारी इतना जो फॉर्च्यून था उनका, जो ये टेरिटरी थी, जो ये पावर थी, किससे हार गए थे? वो मराठास से. अंडर कंप्यूल्शन. कंप्यूल्शन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है ना, एक्शन और स्टेट ऑफ forcing or being forced to do something, that is known as compulsion. ठीक है, compulsion. So उन्होंने क्या किया था मराठास के अंडर में, मतलब वो ना फोर्सफुली क्या कर रहा था, ये सबको उनको जबरदस्ती उनको ये सारी चीजें गिव अप करनी पड़ गई थी. His son and successor Mukunda Dev too was greatly disturbed with this loss
of fortune. He was greatly disturbed, he was greatly he was so unhappy about this loss, and बहुत ज्यादा एक यू कैन से मेंटल टॉर्चर किया गया था उनको। और जो भी टेरिटरी, जो भी ये प्रॉपर्टी थी उनकी एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी थी, वो सारी चीजों को देख के, लॉस को देख के वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। Therefore, sensing an opportunity in the Anglo-Maratha conflict, he had entered into negotiations with the British to get back his lost territories and the rights over the Jagannath temple. Now, what he sensed, he sensed sensing an opportunity. There was an Anglo-Maratha conflict, Anglo-Maratha war, और उन्होंने देखा कि ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी जो नाउ लुक यहाँ पे मतलब इंडियंस, मराठास और ये जो मुकुंदा देव, जो ये उड़ीसा के खुर्दा विलेज के जो ये राजा थे, ये आपस में ही इनके बीच में क्या है, एक मतभेद सा आया हुआ है। सो उन्होंने भी ये चीज अपॉर्चुनिटी उनको दिखी कि हम ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं कि वी विल हेल्प यू एंड यू हैव टू गेट बैक ऑल आवर लॉस्ट टेरिटरीज व्हिच वी लॉस्ट इट टू मराठास। हमें दे दीजिएगा उसका राइट्स, जो है जगन्नाथ टेम्पल्स के जो राइट्स है वो हमें दे देना। बट आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ उड़ीसा इन 1803, द ब्रिटिश शोड नो इंक्लिनेशन टू oblige him on either score. So, but 1803 obviously Britishers ने भी अपनी औकात दिखा दी कि हम भी क्या है, मतलब छल कर दिया। They were like very coward. उन्होंने क्या किया, उड़ीसा को भी कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया, और उसके बाद क्या किया, ब्रिटिश ने उनको कोई भी कोई भी जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो कुछ भी oblige नहीं किया, कुछ भी फॉलो नहीं किया। Consequently, in alliance with other feudatory chiefs of Odisha and secret support of the Marathas, he tried to assert his rights by force. Now, अब क्या हुआ? Consequently, in alliance, what is the meaning of alliance? Alliance means support with other feudatory. What is the meaning of feudatory? मतलब dependent, जो और भी दूसरे dependent थे ना, जो और दूसरे जो राजास थे जिनकी टेरिटरीज वगैरह को कैप्चर कर लिया गया था, तो ऐसे और भी राजा थे, उनके साथ उनकी हेल्प के उन चीफ्स की हेल्प से क्या किया उन्होंने, मराठास की भी एक जो सीक्रेटली मराठास भी क्या कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो उन्होंने फिर से अपने जो राइट्स थे उसे असर्ट करने की, उस पे वो लेने की कोशिश की थी। दिस लेड टू हिज डिपोजिशन एंड एनेक्सेशन ऑफ हिज टेरिटरीज बाय द ब्रिटिश। और इस कदम से क्या हुआ, जो भी इनके पास थोड़ी बहुत जो ब्रिटिशर्स ने टेरिटरीज एनेक्स कर ली थी उनकी, एज अ मैटर ऑफ कंसोलेशन ही वाज ओनली गिवन द राइट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल विद अ ग्रांट अमाउंटिंग टू अ mere 1/10 of the revenue of his former estate, and his residence was fixed at Puri. अब इससे क्या हुआ, जितना भी उनके पास और टेरिटरीज जो बची हुई थी ना, तो ब्रिटिश टेरिटरीज ने सारी टेरिटरीज को एनेक्स कर लिया था, कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया। और कॉन्सोलेशन में उनको क्या बोला गया, उनको क्या दिया गया था कि मतलब कि उनको जगन्नाथ टेम्पल का मैनेजमेंट तो दे दिया, वो राइट तो मिल गया, बट उनको जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसका ओनली 1/10 अमाउंट जो था वो रेवेन्यू मिल रहा था। और जितना भी उनका जो रेसिडेंस था वो कहाँ फिक्स कर दिया गया था, उड़ीसा के पुरी में। This unfair settlement commenced an era of oppressive foreign rule in Odisha, which paved the way for a serious armed uprising in 1870. और इस वजह से, इस unfair settlement के वजह से एक oppressive foreign rule, मतलब ये जो इतना oppressive सा, suppressive सा जो ये rule देख के उन्होंने क्या किया, एक serious upheaval आया, एक serious armed uprising जो है उन्होंने एक कदम ले लिया था। कौन से ईयर में? 1817 में। Soon after taking over Khurda, the British followed a policy of resuming service tenures. It bitterly affected the lives of the ex-militia of the state, the Paks. अब देखिए, अब खुर्दा को उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, ब्रिटिश ने भी क्या है, जो टेन्योर सर्विस थी उसको क्या कर दिया, उन्होंने रिज्यूम कर दिया था। एंड ऑब्वियसली इससे जो एक्स मिलिशिया थे स्टेट के, एक्स मिलिशिया कौन होते हैं? एक्स मिलिशिया का मतलब है एक ऐसी आर्मी और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं होते हैं,
ठीक है, विलेजर्स और जितने भी ये विलेजर्स वगैरह होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो पीपल वगैरह हो गए, ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह हो, दे वर नॉट प्रोफेशनल, बट वो एक आर्मी बनाए हुए थे। तो उनके जो उनको उन्हें हम एक्स मिलिशिया बोलते हैं। उनका नाम क्या था? पैक्स था। क्या नाम था? पैक्स। The severity of the measure was compounded on account of an unreasonable increase in the demand of revenue and also the oppressive way of its collection. Consequently, there was large-scale desertion of people from Khurda between 1805 and 1817. अब ये जो severity थी, ठीक है, ये जो बहुत ही रेवेन्यू डिमांड क्या कर रहे थे, अनरीजनेबल उनकी रेवेन्यू डिमांड हो रही थी। उनका जो कलेक्शन था काफी ऑप्रेसिव कलेक्शन था कि उनकी लैंड में इतना प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर भी उनको जो रेवेन्यू चाहिए होता था। ठीक है, जो तरीके थे बहुत ही ज्यादा लाइक डेंजरस थे, बिल्कुल भी वो लोग उनके लिए लीनियंट नहीं थे। तो इससे क्या हुआ, 1805 से 1817 तक हम देखते हैं कि खुर्दा से बहुत सारे लोग जो है खुर्दा छोड़ छोड़ के जाने लग गए थे। Yet the people went for a series of short-term settlements, each time increasing the demands, not recognizing either the production capacity of the land or the paying capacity of the ryots. No leniency was shown even in case of natural calamities. Even कभी earthquake आ गया, अब उड़ीसा like coastal area है, तो हो सकता है सुनामीज वगैरह भी आते हों, तो नेचुरल कैलमिटीज के टाइम पे भी उनको कोई लीनियंसी नहीं दी जाती थी, which उड़ीसा was frequently prone to. Rather, lands of defaulters were sold off to scheming revenue officials or speculators from Bengal. अब लैंड्स को क्या कर दिया जाता था, अब रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे तो उनसे उनकी जो लैंड है वो कैप्चर कर लेते थे और उनको किसे बेच दिया करते थे, जो बंगाल से भी बहुत सारे ऑफिसर्स और स्पेकुलेटर्स आते थे उनको बेच दिया करते थे, उनको सेल आउट कर देते थे। The hereditary military commander of the deposed king Jagabandhu Bidayadhar Mahapatra Bharambar Rai or Bakshi Jagabandhu, as he was popularly known, was one among the disposed landholders. He had in fact become a beggar and for nearly 2 years survived on voluntary contributions from the people of Khurda before deciding to fight their grievances as well as on his own. अब देखिए, ये मिलिट्री कमांडर एक किंग थे जगबंधु विद्याधर महापात्रा बारंबार राय, और इनको इनका जो अक्का, यू कैन से अक्का, और दूसरा नाम है जो फेमस नेम था बक्सी जगबंधु था। इन्होंने क्या किया था, जो इनकी हालत देख के जो लैंड होल्डर्स वगैरह थे या जमींदार या पेजेंट्स जो थे, नॉर्मली ड्रेयर्स जो थे, मतलब उनकी हालत देख के उन्होंने बहुत हेल्प की, उनकी वॉलंटियरली वो कंट्रीब्यूट करते थे लोगों के लिए, खुर्दा के लोगों के लिए, और उससे वो बेगर, मतलब कि ऐसी कंडीशन आ गई थी कि उन्हें भी भीख मांगने की नौबत पड़ गई थी। तो इससे पहले ये सारी चीजें हुई, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अब हमें ये जितना भी हमारे साथ ग्रीवेंसेस हो रहे हैं, जो भी गलत काम हो रहे हैं, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। Over the years, what had added to these grievances were, अब देखो किस किस टाइप के टॉर्चर्स होने लगे, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्का रूपी, सिल्वर करेंसी हो गई थी रीजन में। The insistence on payment of revenue in the new currency, कि अब आपको करेंसी इसी पेमेंट इसी करेंसी में करना है। एंड अनप्रेसिडेंटेड राइज इन द प्राइस ऑफ फूड स्टफ्स एंड सॉल्ट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो है एकदम फूड स्टफ और सॉल्ट, जो कॉमन आपका फूड आइटम है, सॉल्ट तो बहुत ही जरूरी है, उनकी भी जो प्राइस थी वो बहुत ज्यादा हाइक हो गई थी, which had become far-fetched following the introduction of salt monopoly, because of which the traditional salt makers of Odisha were deprived of making salt. अब देखिए इससे क्या हो चुका था, और ये किस वजह से हुआ था, जो सॉल्ट मोनोपोली आ गई थी। मोनोपोली का मतलब है किसी एक के पास सारी चीजें होना। अब सॉल्ट बनाने का जो राइट था खाली एक ही कंपनी को था, और वो जिस रेट में बेचेगी उसी रेट में सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सॉल्ट मोनोपोली आ गया था, तो जो ट्रेडिशनल सॉल्ट मेकर्स थे उड़ीसा के, उनको भी क्या है, उनको सॉल्ट बनाने से मना करते थे, रोका करते थे। द ऑक्शन ऑफ लोकल स्टेट्स इन कैलकाटा, ऑक्शन नीलामी होती थी। किस चीज की नीलामी होती थी, जो भी जो लैंड वगैरह थे उनकी, कैलकाटा से बहुत सारे लोग आते थे, उनकी लैंडलॉर्ड्स आते थे बंगाल से उड़ीसा में, उनकी जो भी लोकल लैंड्स वगैरह थी उनका ऑक्शन होता था। Besides, the insensitive and corrupt police system also made the situation worse.
for the armed uprising to take a sinister shape. अब देखिए ये जो करप्ट पुलिस सिस्टम था, आर्मी था, बहुत ज्यादा इंसेंसिटिव थे और इस सिचुएशन को और ज्यादा वर्स ये सिचुएशन थी बहुत ज्यादा वर्स बन चुकी थी. यू कैन से कि सिंस जो थे वो आ चुके थे. The uprising was set off on 29th March 1817 as the Paks attacked the police station and other government establishment at Banpur, killing more than 100 men and took away a large amount of government money. Soon, its ripples spread in different directions, with Khurda becoming its epicenter. अब अपराइजिंग कब स्टार्ट हो गई थी? ये अपहेवल स्टार्ट हुआ था 29 मार्च 1817 को. एंड किससे स्टार्ट हुआ था? जो पैक थे, पैक्स जो एक्स मिलिशिया थे जिसको पैक बोला गया था, उन्होंने पुलिस स्टेशन में और जितनी भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स थी उनको क्या किया, बानपुर में क्या किया था, वहां पे अटैक किया था उन्होंने. ओके, बानपुर में अटैक किया था. बहुत हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड देयर एंड बहुत सारा जो गवर्नमेंट मनी था उसको कैप्चर कर लिया था, ले लिया गया था. और धीरे धीरे ये जो ये जो अटैक था, ये जो रिबेल था, ये धीरे धीरे क्या होने लग गया था, स्प्रेड होने लगा था. व्हाट इज रिबेल? जब पानी की एक ड्रॉप में आप कोई भी एक कंकड़ डालते हो, कुछ भी डालते हो, तो एक आप देखते हो कि सर्कल 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 वेव्स जो है वो बनने लग जाते हैं, सर्कल 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 बनने लग जाता है पानी के अंदर, पानी हिलने लग जाता है. तो दैट इज रिपल. धीरे धीरे पूरा स्प्रेड हो जाता है ना. तो जस्ट लाइक दैट धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये जो रिबेल था ये स्प्रेड होने लग गया था. और उसका जो एपिसेंटर, जो मेन सेंटर पॉइंट था, वो क्या था? खुर्दा था. The zamindars and ryots alike joined the packs with enthusiasm. बहुत एंथ्यूसियास्टिकली, बहुत पैशनेटली, आर्डेंटली उन्होंने क्या किया था, जमींदार्स और रियोट्स ने पैक्स को सपोर्ट किया था. Those who did not were taken to task. A no rent campaign was also started. कि no rent campaign उन्होंने स्टार्ट किया था. और जिन्होंने भी जो सोल्जर्स नहीं थे, रेबल्स नहीं थे, उनको भी कोई ना कोई टास्क दे दिया गया था. The British tried to dislodge the packs from their entrenched position but failed. अब ब्रिटिश ने भी बहुत कोशिश कर ली थी. They tried to remove they tried to take over the authority. What is the meaning of dislodge? Remove. When you remove someone from his or her position, that is known as dislodge. So British tried very hard to remove the superiors of superior officers of the PECs, but they failed to did it. So on 14th April 1817, बक्सी जगबंधु जो किंग थे वहां के, जगबंधु जो वॉलेंटियरली काफी जिन्होंने डोनेट किया लोगों के लिए, लीडिंग 5 to 10,000 packs and men of the Kandh tribe seized Puri and declared the hesitant king. अब बक्सी जगबंधु ने क्या किया था, 5 से 10,000 पैक और जो लोग थे कंध ट्राइब के, कांध ट्राइब है पूरी, कांध उड़ीसा की ट्राइब का नाम है. ट्राइब जो जंगलों में रहते हैं उनको हम ट्राइबल पीपल बोलते हैं. तो कांध ट्राइब को उन्होंने के हेल्प से 5 से 10,000 कांध ट्राइब के कुछ लोग थे और पैक्स थे, उनको क्या किया था, उन्होंने सपोर्ट किया था और पूरी को उन्होंने सीज कर लिया. और जो उनके जो हेसिस्टेंट का मतलब अनसर्टन होता है, ठीक है, जो या फिर बोलते हैं ना कि जो दुविधा में पड़ा हुआ होता है कि इधर आगे जाऊं तो कुआं, पीछे जाऊं तो खाई वाली बात हो जाती है. तो जो ऐसे हेसिस्टेंट किंग थे, मतलब दुविधा में पड़े हुए जो राजा थे, मुकुंदा देव, उनको अपना रूलर जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था. Now, seeing the situation going out of hand, the British claimed martial law. अब सिचुएशन उनके हाथों से क्या हो रही थी, धीरे धीरे हाथों से बाहर जा रही थी. तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या है, मार्शल लॉ, मतलब मिलिट्री मार्शल लॉ उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था. एकदम जल्दी से कोई भी चीज जब हम लागू करते हैं तो दैट इज नोन एज क्लैम्ड. उन्होंने मार्शल लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया. द किंग वाज क्विकली कैप्चर्ड एंड सेंट टू प्रिजन इन कटक विद हिज सन.
और जो राजा थे मुकुंदा देव, उनको जल्दी से पकड़ लिया गया था, कैप्चर कर लिया था और उनको उनके बच्चों के साथ कटक के जेल में क्या है भेज दिया गया था। द बक्सी विद हिज क्लोज एसोसिएट Krishna Chandra Bharambar Rai tried to cut off all communication between Cuttack and Khurda as the uprising spread to the southern and the नॉर्थ-वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। अब बक्सी और उसके जो ये क्लोज एसोसिएट थे कृष्णा चंद्रा, उन्होंने क्या है जितने भी कम्युनिकेशन मतलब कि जो भी बातचीत करने के जितने भी तरीके थे कटक और खुर्दा के बीच में, वो सारे बंद कर दिए, जिससे कि जो ये मार्शल लॉ लगा था ये ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड ना हो। Consequently, the British sent Major General Martindale to clear off the area from the clutches of the Pats, while at the same time announcing reward for the arrest of Buxi Jagabandhu and his associates. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मेजर जनरल मार्टिनडेल को यहाँ पे भेज दिया था, खुर्दा में भेज दिया था और उनको बोला था कि ये जो पैक्स वगैरह हैं, ये जो उनके इस एरिया को आप क्या कर लो, ग्रास्प कर लो। क्लचेस मतलब ग्रेस्पिंग को बोलते हैं हम क्लचेस, ठीक है, कि आप पैक्स को आप क्या कर लो, ग्रेस्प कर लो, पकड़ लो उनको और उनका जो एरिया है वो क्लियर करवा दो और जो भी और ये अनाउंसमेंट कर दो कि जो भी बक्सी जगबंधु को या फिर उसके जो एसोसिएट्स है उनको अरेस्ट करवाएगा तो वी विल रिवॉर्ड यू फॉर दिस। So in the ensuring operation, hundreds of packs were killed. अब इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैक्स की जो है डेथ हो गई थी। Many fled to deep jungles and some returned home under a scheme of amnesty. अब बहुत सारे लोग जो है जंगल में भाग गए थे, बहुत सारे लोग घर आ गए थे, किस स्कीम के अंदर, स्कीम ऑफ एमनेस्टी। What is the meaning of amnesty? Amnesty means forgiveness, या फिर जब आप खुद बोलते हो ना माफी मांग के, उन्होंने बोला कि हम आपसे माफी मांगते हैं, हम आगे से ये काम नहीं करेंगे, तो दैट इज नोन एज एमनेस्टी, ठीक है, पार्डन फॉर पीपल, कि मैं लोगों के तरफ से जब लोग खुद क्या करते हैं, माफी मांगने लग जाते, दैट इज नोन एज एमनेस्टी। Thus by May 1817 the uprising was mostly contained. However, outside Khurda, it was sustained by Buxi Jagbandhu with the help of supporters like the Raja of Kujang and the unflinching loyalty of the Pats until his surrender in May 1825. अब खुर्दा के बाहर भी क्या थे, जो बक्सी जगतबंधु है उनके सपोर्टर्स थे, जैसे कि राजा जो कुजुम के राजा थे उन्होंने, एंड the unflinching loyalty of the Pats. Unflinching, what is the meaning of unflinching? You can say कि no, not showing any kind of fear is known as unflinching. जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में बेधड़क या बेझिझक, कोई फियर नहीं होता है, तो वो जो ये पैक्स की ये जो बहादुरता थी, उनको किसी चीज का डर नहीं था ना, तब तक बहुत सारे सपोर्टर्स थे पैक्स से भी जगतबंधु के, तब तक जब तक जगतबंधु जो है 1825 में उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था तब तक। On their part, the British henceforth adopted a policy of leniency, indulgence and forbearance towards the people of Khurda। और इसके बाद से क्या है, ब्रिटिशर्स ने लीनियंसी या फिर ये जो इंडल्जेंस था, डोनेशन, इंडल्जेंस मतलब डोनेशन, जब आप वॉलंटरी कोई डोनेशन करते हो, या फिर फॉरबियरेंस हो गया, तो इन सब के लिए ये सारी चीजें जो है अडॉप्ट कर ली थी, इन सब की पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया था। द प्राइस ऑफ सॉल्ट वाज रिड्यूस, जो सॉल्ट का प्राइस था वो रिड्यूस हो चुका था, और जितने भी पुलिस और जस्टिस सिस्टम में पॉसिबल या नेसेसरी रिफॉर्म्स थे उनको किया। Revenue officials found to be corrupt were dismissed from service and former landholders were restored to their lands। अब revenue officials क्या हुआ, वो जितने भी corrupt revenue officials वगैरह थे उनको dismiss कर दिया गया था और landholders को उनके land restore करके दे दी गई थी। जो खुर्दा किंग ऑफ खुर्दा के जो बेटे थे रामचंद्र देव थर्ड, he was allowed to move to Puri and take charge of the affairs of the Jagannath temple with a grant of rupees 24,000। अब उनको ग्रांट कितने रुपीस मिलते थे, 24,000 रुपीस मिलते थे, और उनको पुरी में भेज दिया गया था।
In sum, it was the first such popular anti-British armed uprising in Odisha, which had far-reaching effect on the future of British administration in the part of the country. To merely call it a pack rebellion will thus be an understatement. Okay, so now ये जो था पहला बहुत ही पॉपुलर एंटी ब्रिटिश आर्म्ड अपराइजिंग इन उड़ीसा, जो रिबेल स्टार्ट हुआ था उड़ीसा में, ये पहला ऐसा पॉपुलर अपहेवल था। और इससे क्या हुआ था, ब्रिटिश, इसके बाद काफी ब्रिटिशर्स ने भी काफी सोच समझ के जो है पॉलिसीज वगैरह को इंट्रोड्यूस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सो ये जो रिबेलियन है उसको पैक रिबेलियन, खाली हम पैक रिबेलियन नहीं बोल सकते क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस पैक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल कर रहे थे, पर इनके साथ में और भी राजा वगैरह भी जो थे उन्होंने हेल्प की थी।